So today we are going to start a new chapter. ठीक है? I will just jump to the chapter directly. I won't do anything else before, like norms and rules. We know already key norms, rules. What should we follow? What should we not do in the online class? So keeping that expectation aside, for the time being, like seeing that expectation out loud aside for the time being, and hoping that you guys will follow those rules, right? So today we are going to start a new chapter which is known as algebraic expression and identities. This is your sixth chapter. ये आपका लास्ट चैप्टर है पार्ट वन बुक का. सो इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है. सो इस चैप्टर में विल सी. हाँ जी. यू कांट हियर मी. अच्छा, जोर से ढोर से बोलता हूँ. सो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है. And it will take only for me to it will take me only 4 classes to complete this chapter. ठीक है? So the first part, the first class will include constant variables, terms, expressions, and equations. ये चीजें क्या होते हैं? Second day will include, like the second day of the lesson will include adding and subtracting algebraic expressions. ये सब क्या algebraic expressions क्या सब है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे. Following multiplying algebraic expressions, and fourth day we will learn about identities. ठीक है? So 4 days we need for this chapter to complete. But this chapter is very crucial. इसलिए देखने में जितना छोटा है उतना मतलब it's very crucial, it's very important, and it requires a lot of practice, because ये जो चैप्टर की चीजें हैं that stays with you for a long time. अभी भी मेरे को याद है इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट्स है या जो भी सम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं. सो दिस स्टेज विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. जो भी मैं यहाँ से बोलूँगा आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बिकॉज ये चैप्टर जो है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ऐसे आपको नहीं आएगा, एक बार दो बार करके आपको नहीं आएगा ये सम्स. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इफ यू सी द बुक ऑल्सो, देयर इज अ लॉट ऑफ in the exercise, there are a lot of questions given. Same type of questions, different type of questions, types हैं बहुत सारे. So all that is there. So you have to practice a lot. ठीक है? But today we will go हल्का. आज थोड़ा light we will start with, because today थोड़े आज थोड़े terminologies, मतलब क्या किसको क्या कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग सीखेंगे. Following which we'll start the real like the uh, real math from tomorrow onwards, like adding, subtracting. यहाँ से we will start the real ones. But today आज सिर्फ वो terms क्या किसको क्या कहते हैं, so that हमको idea हो जाए कि अच्छा, मतलब बाद में जाके problem ना हो समझने में. ठीक है? So that's the main purpose of this. So आज हम क्या करेंगे? आज we'll learn about, we'll recap back to constant and variables. ठीक है? And what are terms and expressions? So constant variables, I guess you guys remember. उसके अलावा we'll learn about terms and expressions. क्या होता है, कहाँ से आता है, types of terms and all that. ठीक है? So objective of today's class is that we will able to difference between constant and variables. We will be able to define terms. Terms क्या होता है, and distinguish them into different types. So we will be able to terms, मतलब हम लोग define कर पाएंगे कि terms बोल के क्या चीज होता है, and उनको distinguish मतलब उसको differentiate करने कर पाएंगे. ठीक है? And also we will be able to find the difference between expression and equation. So ये सब expression क्या होता है, terms क्या होता है, monomials, binomials, ये हम सीखेंगे आज. ठीक है ना? इसके अलावा इनको डिफरेंशिएट करना करेंगे. ठीक है? एंड हाउ विल वी डू? वी विल रिकैप थोड़ा सा. हाय नादिया, प्लीज डोंट ड्रॉ. आई कैन सी यू आर ड्राइंग. ओके. सो वी विल बी एबल टू रिकैप, लाइक हम लोग थोड़ा रिकैप करेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या चीज है. उसके बाद थोड़ा वी विल क्वेश्चन ईच अदर, विल डू सम एक्टिविटी अराउंड की टर्म्स क्या चीज होता है, expression क्या चीज होता है, and what are the different types of terms. And then we will do difference between expression and equations, following which we'll practice
few questions and then we'll recap. Okay, this is how I have planned out, or like this is how I have planned this whole class today. मैं बहुत काम किया है कल पीपीटी में, so yeah. But anyways, so अभी तक clear है क्या करेंगे हम, मतलब क्यों करेंगे हम? Okay, sir. Yes, sir. Great. I haven't started teaching yet, so I haven't started the real chapter yet. अभी तक बकवासी बक रहा हूँ, but no worries. ठीक है. So I hope you guys remember constant और variable क्या चीज है. So I want you guys to take out your copies या जो भी आपके पास जो note taking device है या जो जहाँ पे आप लिखते हो वहाँ पे I want you to differentiate कि यहाँ पे जो जितने statements हैं, यहाँ पे जितने sentence हैं, उनमें से कौन सा कांस्टेंट आपको लग रहा है, कौन सा आपको वेरिएबल लग रहा है. गॉट इट? सो यहाँ पे यू कैन सी देयर आर 5 स्टेटमेंट्स. यू हैव टू टेल मी कि कौन से कांस्टेंट्स लग रहे हैं आपको और कौन से वेरिएबल्स लग रहे हैं. ठीक है. सो यू हैव गॉट ओनली 2 minutes टू डू दिस, and after 2 minutes we'll discuss. ठीक है. Okay, who wants to repeat the instructions? Can Rima? No, sorry. Can Sir, anyone? you should. Sorry, I was not aware. But just repeat the instructions एक बार. You have got only 1 minute. आपको क्या करना है? I can tell. Yes, शायद. Please go ahead. Sir, I want to see there which is the constant and which is the variable. I want to find Thank out. you so much. Awesome. So you have more 1 minute. So write in your copies कि कौन सा आपको लग रहा है constant है, कौन सा variable है. ठीक है. Hello, sir. Hi, Aisha. Good morning, sir. Good morning. Okay. So thank you so much. So we know what are constant and variables. So this was just a recap of क्या है constant and variables. So we know constant are those things which have a defined value, right? मतलब जिसमें number हम देख सकते हैं या जिसका number हम माप सकते हैं. For example, in the first sentence you can see there are 206 bones. So they're defining it and therefore it's a constant. But in the second one, they're saying there are many trees, but they're not defining a number. So that is why it's a variable. ठीक है. Similarly, बाकी के लिए भी same reasons है. So we will move forward. We know what are constant variables. So we are going to move forward with this constant variables in our mind. ये जो ideas हैं, ये जो सीखा हमने या सीखा था हमने, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे in learning new terminologies or like new things basically, right? So abhi so you can see there's one more activity which I have kept here is that कि आपको यहाँ पे कुछ terms दिख रहे हैं. ठीक है. XYZ mn divided by z 108 plus 34 minus 20 13 plus y minus r ऐसे करके मैंने 1 2 3 4 5 6 terms है, right? So now what you have to tell me, आपको यहाँ पे 3 buckets दिख रहे हैं. In one bucket there is combination of variables. एक और bucket में है कि combination of variables and constant, और एक और bucket में है combination of constants. So what I want you guys to do right now is that कि आपको जो लगता है, for example अगर आपको लगता है कि XYZ combination of variables है सिर्फ, so you have to put that into this bucket. Similarly, आपको अगर लगता है कि सिर्फ 108 plus 34 minus 20 सिर्फ एक कांस्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट है, सो आप उसको यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वाले बकेट में डालोगे. ठीक है. सो आई हैव ओनली 3 minutes टू डू दिस एंड आई होप आप लोग को समझ में आया. In order to check for understanding, I will ask someone to just repeat the instructions. Mehak, yes, go ahead. बोलो. Like mn divided by z is combination of variable. Right, exactly. So yeah, Because they all have variable only. perfect.
perfect. So independently you have 3 minutes to do this. So आपको यहाँ पे जो लगता है कि जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स है वो यहाँ पे जाएगा, जिसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट है ये वहां पे जाएगा, और जिसमें सिर्फ कांस्टेंट्स है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, That's ये आपको 6 जगह 6 चीजें मैंने दिया है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। So I have only 3 minutes to do this. Quickly do that. Yes, Shahid, do you have any question? In my book, Yes, here in your book you have to do it. Your voice is cutting. If you get put that on chat, that will be great. Kulsum is done, I guess. Sir, can I explain once? Yes, please explain. If there is only variables, that is combination of variable. If there is only constant, that is combination of constants. If there is variable and constant mix, that is combination of variable and constant. Right. Absolutely perfect. Manan, understood or not? Yes, sir. Yeah, tell me. Like, honestly tell me. Did you understood? For example, देखो x, y, z में सारे constant है या variables है? Variable. Exactly. So ये जाएगा combination of variables में. मान लो xy minus 10. यहाँ पे xy क्या है? Variable. Variable, but 10 यहाँ पे क्या है? Constant. Exactly. So it will go to combination of variables and constant. So जिसमें सिर्फ variables होंगे वो variables में जाएगा, जिसमें सिर्फ constants होंगे, जिसमें सिर्फ numbers होंगे वो constant combination of constants में Oh, जाएगा. yes, sir. Understand. Understood? Great. Awesome. Yes, sir. Perfect. For example, मान लो you know variables and constant क्या चीज है? Like a is a variable but 8 is a constant, right? Now when I this is a single term, like this is a single variable, right? इसके बाजू में मैं जब b ऐड करता हूँ ये कॉम्बिनेशन बन जाता है दो वेरिएबल्स का, एक और में जब मैं 3 ऐड करता हूँ ये कॉम्बिनेशन बन जाता है 3 वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स है। बट व्हेन आई आल्सो ऐड फॉर एग्जांपल 8 हियर, ये बन जाता है दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल। दिस बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। बट मैं जब सिंगल एक अगर 8 लिखता हूँ, उसके बाद अगर मैं 20 लिखता हूँ, या तो उसके बाद अगर मैं -11 लिखता हूँ, दिस बिकम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स होंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट्स ही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिमिलर टर्म्स दिखेंगे जहाँ पे वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ सिर्फ वेरिएबल्स है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ सिर्फ कांस्टेंट्स है, और कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नाउ। If any one of you want to, okay, I can see Kulsum raising her hand. Kulsum, you can go first, followed by Mehak you. Yes, Kulsum. First one. Sir, इसमें सारे variables हैं sir. So this goes to variables, right? Awesome. Thank you so much. Because इस तीनों में ही सिर्फ variables ही हैं, and therefore it's a combination of variables. Thank you so much. Mehak, Sir, second also variable only. second also सारे variables हैं, and therefore this is a combination of variables. Great. Husna, third one. Sir, constants. सिर्फ constant, combination of constants. Combination. Great, awesome. Thank you so much. क्योंकि तीनों में ही constants हैं, तीनों terms ही constant है। I could see उमेश ने hand raise किया था। उमेश, you could come back. Fourth one, tell me. Apart from Mehak, you could, Variable and constants. ये उमेश ने बोला। उमेश का गला ऐसा कैसा हो गया? बट ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे Sir, that I am told. कौन? सिमरन,
आई डोंट नो। Mekhanum. अच्छा महक खानम, Mekhanum. अच्छा अच्छा, थैंक यू महक खानम। सो यस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, राइट। फिफ्थ वन, Same, xy sir. minus 10, सेम, राइट, सेम। यहाँ पे भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है, यहाँ पे दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ कांस्टेंट, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। एंड फाइनली 4 डिवाइडेड बाय x square, दिस आल्सो इज अ Same. कॉम्बिनेशन ऑफ Same only. ग्रेट, ऑसम। सो वी हैव अंडरस्टूड कि ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल्स आर कांस्टेंट कॉम्बिनेशन में रह सकते हैं, राइट। सो इसके ऊपर वी विल एक्चुअली बिल्ड, मतलब इसके थ्रू वी विल लर्न फ्यू थिंग्स, ठीक है। सो ये मैं क्लियर कर देता हूँ एंड टू शो यू द अच्छे तरह से आंसर। सो दिस इज द आंसर्स, ठीक है, आंसर, एंड वी हैव ऑलरेडी क्रैक्ड इट। बट अभी आप अगर देखोगे, we will learn a new concept which is known as term, TERM, ठीक है। ये एक नया वर्ड है for us, ठीक है। In maths, term is a constant or a variable or a combination of constant and variables. For example, all these things which we saw are terms, x, y, z, mn divided by ये mn, z, 108, 34, 20, ये सारे एक एक टर्म्स हैं, ठीक है। 13 I R, नादिया इफ यू could प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट, आप अगर म्यूट पे रख सकते हो तो सही रहेगा। सो एक्स वाई 10 4 x स्क्वायर, ये सारे टर्म्स है, एक एक टर्म्स है, ठीक है। सो टर्म्स कुछ नहीं है, बेसिकली टर्म इज अ कांस्टेंट, इट कैन बी अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल टर्म्स, सिंगल टर्म क्या होता है, जब वो एक ही टर्म होता है, उसके आजू बाजू कोई साइन नहीं होता है, वो सिंगल टर्म है, ठीक है। सो 9h p3 p क्यूब 7x डिवाइडेड बाई 15y, 3x 21 डिवाइडेड बाई xy, 4xy, yz बाई x, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, दैट इज यहाँ पे अगर आप देखो 9 इज अ सिंगल टर्म या h इज अ सिंगल टर्म, p क्यूब इज अ सिंगल टर्म, बट when you see 3x, कैन यू टेल मी 3 के साथ x क्या कर रहा है, Multiple. मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, राइट। सो बट ये जो दो अलग अलग टर्म्स, मतलब 3 एक कांस्टेंट है, x इज अ वेरिएबल, राइट, बट ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं एंड these are not separated by multiplication, ये दोनों एक ही है। so therefore 3x is a single term. Similarly 4xy में अगर आप देखोगे, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, बट तीनों मिलके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो Yes. उसको सेपरेट नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट सेपरेटिंग देम, सो देयरफॉर इट्स अ सिंगल टर्म, ठीक है। सिमिलरली डिवीजन के लिए भी सेम केस होता है, 7 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 के साथ y मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, बट दोनों डिवीजन है, 7x और 15y दोनों डिवीजन कर रहे हैं अपने आप से, ठीक है। बट ये डिवीजन जो है उसको सेपरेट नहीं कर रहे हैं, सिमिलरली लाइक मल्टीप्लिकेशन। सो दिस 7x और 15y एक एक टर्म है, इट्स अ सिंगल टर्म। सिमिलरली 21 डिवाइडेड बाई xy, you can see x और y multiplication। नादिया डोंट कम ऑफ म्यूट, ऐसे 21 जो है उसको xy डिवाइड कर रहा है, सो दिस इज अ सिंगल टर्म वेयर the division is not separating those two अलग अलग चीजें, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल्स अलग अलग नहीं है, एक साथ ही है। सिमिलरली yz और x, वी कुड सी y के साथ z मल्टीप्लाई कर रहा है एंड ये yz के साथ x डिवाइड कर रहा है, but this is not separated by division or multiplication, these are single terms, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आया टर्म्स क्या होता है, टर्म क्या होता है मैथ्स में और अलजेब्रिक Yes, sir. एंड व्हाट आर Yes, सिंगल टर्म, sir. जब एक सिंगल चीज होता है, या सिंगल मतलब एक साथ जुड़े हुए रहेंगे तो ही वो
सिंगल टर्म हो जाता है. सो ये आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा व्हेन आई विल शो यू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे आप देख सकते हो कि 7 minus y, 7 is a single term, y is a single term, and यहाँ पे Yes. ये दोनों जो टर्म्स है वो सेपरेटेड है बाय सब्ट्रैक्शन, एंड सिमिलरली एडिशन के साथ भी दे कैन बी सेपरेटेड. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3x² and 4y are separated by subtraction. ठीक है. So this is a single term, 3x is a single Oh, term, sir. 3x² is a single term, and 4y is a single term, Yes, sir. and both are Yes, yes. separated by subtraction. Similarly, 6xy is a single term, 8y² divided by x is a single term, and xy is a single term, and these Yes. three are separated by minus and plus. ठीक है. Similarly, 5/8 is a single term. ये एक single term है. 3x² divided by 4 is also a single term, and this is separated by minus. So बहुत सारे single terms can be combined or separated using addition or subtraction. So subtraction और addition दोनों terms को अलग करते हैं. Example आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 एक term है, y एक term है, इन दोनों को separate कर रहा है माइनस, और इनको मिला भी रहा है ये माइनस. बेसिकली दे आर सेपरेटिंग एंड ये कॉम्बिनेशन बनाता है ये जो माइनस और प्लस है. ठीक है. सो अगेन इफ आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई गेस यू गाइस विल अंडरस्टैंड और अच्छे से कि जब ये माइनस या प्लस रहेगा देन एक एक सिंगल टर्म बनेगा और मल्टीपल टर्म्स बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप दो टर्म्स देख सकते हो 7 और y, एंड सिंस माइनस है बीच में दिस बिकम 2 टर्म्स. ठीक है. सिमिलरली 3x² minus 4y जो है उसके बीच में माइनस है, एंड देयरफॉर आप काउंट अगर करोगे ये एक टर्म है ये एक टर्म है, सो देयरफॉर 2 टर्म्स. 3 टर्म्स यहाँ पे थर्ड वाले में अगर आप देखोगे 6xy एक टर्म है, एक सिंगल टर्म है. xy² by x 2 टर्म है, xy 3 टर्म है, सो टोटल यहाँ पे 3 टर्म्स है. ठीक है. सिमिलरली 5/8 एक टर्म है, 3x² by 4 2 टर्म है, और दोनों के बीच में माइनस है, therefore there are 2 टर्म्स. ठीक है. सो आप लोगों को ये समझ में आया कि कैसे सिंगल टर्म्स, 2 टर्म्स और 3 टर्म्स बनते हैं. Yes, sir. Yes, sir. क्विकली इफ यू कुड टेल मी कि सिंगल टर्म्स अगर 3 रहेंगे किसके थ्रू दे कैन बी कंबाइंड, दिस किसके थ्रू दे कैन बी 3 टर्म्स, मतलब क्या किसके साथ, Plus. प्लस या माइनस. ठीक है. सब्ट्रैक्शन और एडिशन साइन अगर बीच में रहेगा सो दोस कैन बी कंबाइंड टू बिकम 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स. ठीक है. बहुत सारे टर्म्स. सो इसके ऊपर विल डू वन मोर प्रैक्टिस एक्टिविटी. ठीक है. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, Because- sir. It because- is Yes, clear. sir. Clear. बिकॉज आई एम फीलिंग कि मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सो इफ एनी टाइम अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, सो प्लीज लेट मी नो. ठीक है. Okay, sir. ओके. ठीक है. ऑल राइट, विल मूव फॉरवर्ड. सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो आई हैव आल्सो लाइक द सेम जस्ट लाइक लास्ट टाइम. आपको यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं. आपको क्या करना है, आपको इसको Yes, sir. बेसिकली इसमें बकेट में डालना. बकेट में डालना है. सिंगल टर्म आपको जो लगता है सिंगल टर्म में जाना चाहिए वहां सिंगल टर्म में जाएगा. जहां पे आपको 2 टर्म्स दिख रहे हैं वो 2 टर्म्स में जाएगा. जहां पे आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं 3 टर्म्स में जाएगा. जहां पे आपको 4 टर्म्स दिख रहे हैं वो 4 टर्म्स के बकेट में जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, फर्स्ट ये वाला, यहाँ पे अगर आपको देखेगा दिख रहा है कि 1 2 4 terms, sir. 3 4, so therefore this will go to 4th term. ठीक है. Similarly do for the Yes. rest of the things. You have 2 minutes to do this. ठीक है. Sir, हाँ जी. when there come plus या minus, Sir, I that can is tell a one, separate, no? Sir, single and 2 term I can tell. है
सिंगल एंड टू टर्म्स आपको समझ लाइक आप रिपीट करना है? Can tell answer that. ओके ओके ठीक है, जब आंसर बोलेंगे आई विल आस्क यू फर्स्ट वन। Sir, second me. ठीक है ठीक है। हाँ, सो बैक टू शाहिद्स क्वेश्चन अराउंड कि अगर माइनस या प्लस रहेगा, आप माइनस प्लस देख के नहीं डिटरमाइन करोगे कि वो सिंगल टर्म या टू टर्म है। आप देखोगे कि वो कितने टर्म्स है वहां पे, कितने टर्म्स को प्लस या माइनस अलग कर रहा है या कंबाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देख लो, 3x -3x² और 6xy, यहाँ पे आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 2. दैट्स व्हाट, आप सिर्फ यहाँ पे काउंट करोगे, ठीक है, दैट्स इट। आप काउंट करके पता चलेगा। Oh, I don't want to see there how much terms is there. Means there in one time term they have not -3x2. No, no, That no, I no. don't want to take. No, 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 Only no, I no, no. want to take one that is the phase 2. यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -3x² एक टर्म है और 6xy एक और टर्म है, सो 1 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 Yes, sir. 2 3, सिंपल। Okay, we have more 1 minute, I guess. You have to scooch. You have to do early. I'm telling that -1. For single term. Which one? This one, right? आप last one से start करोगे, ठीक है? Yes, Cool. sir. This one to single. 5x² y divided by 7z -5x² y 7z. आपको यहाँ पे Single कितने? Only 0 term, 1. 1 term. Single, sir, single. So यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है। That only I'm telling. Thank you. Absolutely correct, Manan. So यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिविजन हो रहा है, बट एज वी नो कि मल्टीप्लिकेशन डिविजन डज नॉट सेपरेट टू टर्म्स from each other, they actually kind of join one term. So multiplication division होगा तो भी ये एक single term है, so this will go to the यहाँ पे, ठीक है, this is a single term, ठीक है। महक, if you could go for the first one, और जो आपको लगता है ठीक। Okay, sir. First one is 2 term. 2 terms because 3x² is 1 term, 6xy is second term, ठीक है, so this will go to 2 term. Great, awesome. I will ask Kulsum next, maybe. Sir, second is 4 terms. 4 sir. terms, right? Awesome. यहाँ पे 1 terms, 2 terms, 3 terms, 4 terms. So this will go to 4 term. Awesome. Then maybe ask, I will ask Alfia to come off mute because I am sensing Alfia is some. Yes, sir. बोलो. Third one, कितने terms है यहाँ पे? Count with me. कितने टर्म्स हैं? 108, 34 और 20। 3 terms. 3 टर्म्स, दैट्स इट। यहाँ पे 1 2 3, तो दिस इज 3 टर्म्स, ठीक है। सिमिलरली 13d डिवाइडेड बाय 2 प्लस y²। अल्फिया गो अहेड, सेम। कितने टर्म्स है यहाँ पे? 13d, अच्छा अल्फिया चली गई और मेरे को 3 terms. 3 टर्म्स। 3 टर्म्स, व्हाई? No, sir, 2 terms. 2 टर्म्स, देखो आप 13d डिवाइडेड बाय 2, दिस इज अ सिंगल टर्म, एक सिंगल टर्म, एंड y² इज आल्सो अ सिंगल टर्म। सो टेल मी कितने टर्म्स हैं? 2 terms. दिस इज 2 टर्म्स, क्योंकि बीच में प्लस है और दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है, और आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं समझा नहीं सकता कि क्यों ये 2 टर्म्स है, आपको देख के Okay, sir. ठीक है। तो दिस इज 2 टर्म, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, सो दिस विल गो टू दिस थिंग, एंड फाइनली ax² प्लस bx माइनस c, यहाँ पे 3 कितने टर्म? terms. 3 टर्म्स, राइट, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ 3 टर्म। सो we have kind of understood कि कैसे to determine या to distinguish कि कौन सा single term है,
कौन सा 2 टर्म है, कौन सा 3 टर्म है, कौन सा 4 टर्म है. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. Yes, sir. जस्ट टाइप ऑन चैट कितना आपको समझ में आया आउट ऑफ 1 to 5 अभी तक. Yes, Shahid, you want to say something? Okay, Mehak says 4, great. 5, Mehak you says 5, Kulsum says 5, Aisha Khanum says 4, Husna says 5, great. Manan says 0. Why? Okay, 5. Thank God. Shahid, Shahid says 6. Thank you so much. What about others? Sahil, King Call Me, Aisha Taj, Alfia. What about others? Alia is at 3, no worries. Alfia is at 3, kind of 4. कोई बात नहीं. Arfat is at 5. ठीक है. Aisha is at 5. ठीक है. No worries. But be honest with me. ठीक है. If you are not at 3, if you are at 1 also, it's okay. But मेरे को बताओ. Otherwise मेरे को समझ में नहीं आएगा. Yes, Mehak. You can ask me on chat if it's kind of personal. ठीक है. Hajira is at 3. कोई बात नहीं Hajira. We will move forward. We'll try to move ahead with this, and it's okay if you're at 3. Great. So ये single term, 2 term, 3 term, 4 term हमने कर लिया, right? But इसका purpose क्या है? इससे क्या करेंगे हम? क्या उखाड़ेंगे इससे? So basically this is the answer if you could see single term, 2 terms, 3 terms या 4 terms का. But इसका purpose क्या था? क्यों किया मैंने ये? तो हमने देखा कि एक सिंगल टर्म को कनेक्ट करता है प्लस या माइनस. सो सिंगल टर्म्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल टर्म्स आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस. और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 7 माइनस वाई इस यहाँ पे 2 टर्म्स है और दोनों को अलग कर रहा है, कि दोनों को मिला रहा है माइनस साइन या सब्ट्रैक्शन साइन. सो दिस इज अ एक्सप्रेशन. ठीक है. सिमिलरली 6 एक टर्म है, x स्क्वायर एक टर्म है, 3x एक टर्म है, और इन तीनों को मिला रहा है प्लस और माइनस. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स एंड दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है. सो आई विल बी यूजिंग दिस टर्म, Yes, sir. I will be using this expression word. I will be using this word बहुत बार. So please ये चीज एक्सप्रेशन क्या है वो जान लो अच्छे से, क्योंकि मैं बार बार एक्सप्रेशन बोलूंगा आपको कुछ अलग लगेगा. आप सोचोगे कि मे बी सर शक्ल की बात कर रहे हैं. नहीं, बट नहीं. एक्सप्रेशन इज बेसिकली जब एक सिंगल टर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म which is connected with plus and minus. ठीक है. सांस ले गए. Great, awesome. So I hope so similarly यहाँ पे अगर आप देखोगे 7x divided by 9 this is a single term, 4y is a single term and 6z is a single term, but these are connected or combined with each other with plus and minus. So ये पूरा जो चीज है that is an expression. अगर similarly 2ab this is a single term. Nadia, I can hear you. Please stop. Okay. And similarly 2ab जो है 2ab में there is no plus sign minus sign या कोई और term नहीं है, but it's a single term and single terms can also be an expression. ठीक है. So वो single term हो, 2 terms हो, 3 terms हो, 4 terms हो, 5 terms हो, 100 terms हो ना हो, it's called an expression. ठीक है. इनको हम expressions बोलते हैं या algebraic expressions बोलते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टू ये एक्सप्रेशंस जो है इसको हम टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. बेस्ड ऑन कितने टर्म्स है, कीपिंग अ नोट ऑफ कितने यहाँ पे टर्म्स है. यहाँ पे 1 टर्म है या 2 टर्म है या 3 टर्म है, इसके बेसिस में इनको हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में. ठीक है. सो जब एक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होगा दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. ठीक है. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है 23x स्क्वायर y. यहाँ पे एक ही टर्म है एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड मोनोमियल. मोनो का मतलब होता है 1. ठीक है. Yes, तो वहां sir. से ये वर्ड Yes, आया मोनोमियल. ठीक है. सिमिलरली 6x इज डिवाइडेड बाय 5xy.
यहाँ पे भी ये सिंगल टर्म है, and this is also a monomial. This is also an example of monomial. 7x divided by 9, this is also a single term and this is called an monomial, and all of these are expressions. ठीक है, ये algebraic expressions ही है, but algebraic expressions में जब सिर्फ एक single term रहेगा उसको हम बोलते हैं monomial. Similarly 2ab जो है that is also a one term containing expression and therefore it's called a monomial. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप को हम कहते हैं बाइनोमियल. जब एक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. बाई मतलब टू, बाइनो मतलब टू, और वहां से ये वर्ड आता है बाइनोमियल. ठीक है, आप एग्जांपल्स देख सकते हो 7 - 23x²y. सो यहाँ पे टू टर्म्स है, अगर आप देखोगे बीच में Sir, माइनस है और यहाँ पे sir. टू टर्म्स है. हाँ जी उमेर. Sir, there is trinomial also, no? Yes, that Trinomial. yes, trinomial, right? So binomial क्या चीज होता है, जहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन में सिर्फ दो टर्म्स होते हैं, that is called binomial. Similarly थर्ड वाले में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे दो टर्म, so two terms and therefore it's a binomial. ठीक है, and a minus b यहाँ पे भी two terms, one term, two term, so therefore it's a binomial. And as Umesh also said and Manan also said कि जब तीन टर्म्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. ठीक है, एक एक्सप्रेशन में जब तीन टर्म्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. यहाँ पे ट्री होगा, सॉरी मैं ये डिलीट करना भूल गया. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जांपल्स में देयर आर थ्री टर्म्स गिवन ओवर देयर, सो दैट इज व्हाई दिस इज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. दिस वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म. ठीक है, तो जब थ्री टर्म्स रहेगा तब इट्स कॉल्ड that expression is called a trinomial. ठीक है, one term, two term, three term, one term, two term, three term. Similarly one term, two term, three term. ठीक है, this is called a trinomial. ठीक है, so expressions में हम और भी होते हैं, अगर चार टर्म्स होते हैं उसको और कुछ कहते हैं, फाइव टर्म्स जब होते हैं बहुत और कुछ कहते हैं, बट एक से ज्यादा जब भी टर्म्स रहता है कोई एक्सप्रेशन में वी कॉल इट पॉलिनोमियल्स. सो पॉलिनोमियल्स के अंदर ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, आगे जाके और भी जो चीजें आते रहते हैं वो आते हैं. ठीक है, सो आई होप बाइनोमियल, नहीं मोनोमियल नहीं, क्या था मैं भूल गया. Trinomial. मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये तीन चीजें हमने अभी सीखा, राइट? तो अभी मुझे ये बताओ इनमें से कुछ डाउट है कि नहीं? एक्सप्रेशंस क्या होता है ये समझ में आया? Yes, sir. ग्रेट, ऑसम. एक्सप्रेशंस क्या होता है आपको समझ में नहीं आया? है डाउट सर. मोनोमियल क्या चीज है आपको समझ में आया? बाइनोमियल क्या है आपको? Yes. ट्राइनोमियल क्या है वो समझ? Yes. ओके, देन आई गेस वी कैन डू अगेन फिर से बकेटिंग, वी कैन डू डिफरेंशिएशन फिर से. सो आई गेस आपको ये पता है क्या करना है. आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे एक्सप्रेशंस, इसको आपको तीन चीजों में डिवाइड करना है. ठीक है, जहाँ पे दो टर्म्स है दैट गोस, जहाँ पे एक टर्म्स है दैट गोस टू मोनोमियल, जहाँ पे दो टर्म्स है दैट गोस टू बाइनोमियल, जहाँ पे तीन टर्म्स है दैट गोस टू ट्राइनोमियल. ठीक है, इज दैट क्लियर? आई विल आस्क मे बी आलिया टू Yes. come off mute and tell me कि हमको क्या करना है. आलिया, if you are there. I know शायद you have listened, but आलिया को मुझे पूछना है. आलिया, इट्स ओके अगर आप बोलते हो कि सर मुझे नहीं पता है, इट्स ओके. ओके, आलिया शायद नहीं है, सुन नहीं पा रही है. मे बी आई कुड आस्क आयशा ताज. What, sir? वो क्या करना है यहाँ पे, जल्दी से रिकैप करके बताओ. Group the terms in the correct bucket. Sir, इसको है ना कौन सा करेक्ट है उसमें डालना. एग्जैक्टली किस बेसिस पे, बेसिकली कौन से बेसिस? जो करेक्ट है ना
वो हाँ। बगिट्स में डालना है जो वो टर्म्स में डालना टर्म्स तो सही है, बट आपने अगर सुना है ठीक ठाक से, देन वी हैव लर्नड अबाउट एक्सप्रेशंस। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, और एक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म रहता है दैट इज अ मोनोमियल। और कैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। Sir, can I tell? You can tell, I know Mehak, you know, but just giving a chance to others as well. So basically expression क्या होता है expression में, हाँ, so these are called all, ये जो terms हैं इसको हम expressions बोलते हैं, right? और एक expression में जब एक से ज्यादा एक term रहता है that is called monomial, जब two terms रहता है that is called binomial, and जब three terms रहता है that is called trinomial। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेस ये काउंट करके बताना है कि एक टर्म जो है वो मोनोमियल में जाएगा, दो टर्म जो है वो बाइनोमियल में जाएगा, थ्री टर्म्स जो है वो ट्राइनोमियल में जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू नाउ। इस बेसिस पे यू हैव टू डिफरेंशिएट या बकेट में डालना है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। Yes, sir. यू हैव 2 minutes टू डू दिस। फिर से सो यहाँ पे बेस्ड ऑन द दिस थिंग, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, राइट? सो टेल मी, आई कैन सी कुलसुम रेजिंग हर हैंड फर्स्ट। कुलसुम, गो अहेड, फर्स्ट वन। Sir, MNZ is monomial, sir. It's a monomial. Yes, absolutely correct. Perfect. Because there's only one term, right? And that is why it's a monomial. ये वाला 3x square plus 6xy Sir, minus, can I tell? yes, Mehak, That is binomials. that is binomial. Perfect. Awesome. I will ask maybe कौन है? Sahil, if you are listening to me, please tell me कि third one क्या चीज हो सकता है? Ponomial, binomial, trinomial, कौन सा वाला? Third one, 108 plus 34 minus 20, ये कौन सा हो सकता है? ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल? बाइनोमियल, अच्छा, बाइनोमियल होता है जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं, ठीक है? मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, ट्राइनोमियल होता है जहाँ पे ट्राइनोमियल, एब्सोल्युटली परफेक्ट। यहाँ पे तीन टर्म्स है, देयरफॉर इट्स अ ट्राइनोमियल। ठीक है, ओके, आई विल आस्क नेक्स्ट मे बी महक खानुम, अगर आप सुन रहे हो। आई विल आस्क अरफत, वेट, खानुम, महक, क्विकली। Sir, can I? मेरे को दिख नहीं रहा है कौन, who wants to tell, so that's why. Alfia, yes, Alfia, go ahead, please. Third one, fourth one. Binomial. It's a binomial, perfect. With दो terms है, right? Yes. Similarly, ये वाला, Arfat. Trinomial. Okay, Arfat, do you agree with that? Great, awesome. This is a trinomial with three terms, 1, 2, 3, and finally ये वाला, और ये वाला तो already, I think I will ask maybe Aisha. Yes, sir. Last one, Trinomial. Aisha, what? Sir, trinomial. This one, last one. Yes, Why do you think it's a trinomial? because there are three terms. How? Sir, 5x and 2y divided by 7z. 5x Sir, square can I y tell? divided by 7z. I Now can tell, sir. I can tell. it's Sir, okay. can I? एक second. So basically, No, what? Okay, everyone wait. Just एक थोड़ा misconception है आयशा यहाँ पे. So 5x square y is divided by 7z. So what we learned earlier is that कि multiplication या division जब होता है, आप अगर देखोगे 5 के साथ ये x square multiplication हो रहा है, उसके साथ ये y Sir, multiplication that हो रहा है. is single term, no, that is monomial. I know that, but आयशा को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये misconception हो गया है, so just clarifying that. So 5 के साथ x क्या कर रहा है, आप मुझे बता सकते हो आयशा, quickly?
Yes, sir. Multiplication. मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली y अगर जोड़ दिया तो यहाँ पे y क्या कर रहा है इन तीनों के साथ, ये दो तीनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, Divide. Yeah. मतलब तीनों मिलके मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। नाउ उसके नीचे मैंने 7z ऐड कर दिया। सो अगेन क्या कर रहा है 7z इसके साथ, Multiplication. इसके साथ Oh, sorry. Divide. डिवीजन कर रहा है ना। बट जब भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा, दैट डज नॉट सेपरेट अ टर्म, वो एक दूसरे को मिला के रखते हैं। बट अगर मैंने यहाँ पे प्लस डाल के कुछ 2y डाल दिया, देन इट्स अ 2 टर्म, क्योंकि उनको सेपरेट कर रहा है ये प्लस। बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जब होगा, it does not divide or it does not separate two terms from each other. It actually kinds of एक साथ मिलाते हैं, ठीक है। So this is a one term and this is two term, ठीक है। So multiplication division जब भी होगा, जितने भी यहाँ पे अगर 500 ऐसे 555 या xxx या कुछ भी ABCD आ जाए, तो भी ये एक ही टर्म रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं उनके अंदर, ठीक है, और ये डिवीजन हो रहा है इसके लिए। सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय सीइंग दिस डिवीजन साइंस या मल्टीप्लिकेशन साइंस, ये सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। गॉट इट? आई होप दैट इज क्लियर एंड यू कैन जस्ट काउंट। देयर इज नो लाइक राइट वे टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि ये सिंगल टर्म ये दो टर्म है। आपको सिर्फ देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक टर्म है या दो टर्म है या तीन टर्म है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के साथ साथ Yes, sir. so it will come with practice, ठीक है। so I guess इसके बाद कोई slide नहीं है। so these are the answers and most of you have done correctly and kudos to you for that. Pat on your back. So we are going to end this class here today. So already I just wanted to have one more discussion around expressions and equations, but we'll do that next day. So just quickly recapping what we have learned today. We have came across what are terms, well like we first recapped कि क्या होता है, मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या चीज होता है, हमने रिकैप किया। उसके बाद हमने देखा कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल जब एक साथ मिल जाते हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होते हैं, देन इट बिकम्स अ टर्म। फॉर एग्जांपल 5x, 5 एक कांस्टेंट है, x इज अ वेरिएबल, राइट। बट ये दोनों जब मिलते हैं, दैट बिकम्स अ टर्म बाय देमसेल्व्स। combination of constant या variable या constant या variable is a known as terms. So now हमने उसके बाद देखा कि एक term दूसरे term से क्या separate करता है, plus and minus सैंपल एक एक कितना हुआ, ठीक है। and जितने terms होंगे उसके basis पे I can tell. polynomial। After that name, you will tell two names that. Then what we learned, ठीक है। टर्म्स के बाद हमने क्या सीखा, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म। वन टर्म जब होता है कोई एक्सप्रेशन में, उसको क्या कहते हैं, शायद एक टर्म जब होता है एक एक्सप्रेशन में क्या कहते हैं, Monomial. मोनोमियल। ऑसम। अरफत, दो टर्म्स जब होता है एक एक्सप्रेशन में क्या कहते हैं उसको, बाइनोमियल। बाइनोमियल। ग्रेट, परफेक्ट। एंड फाइनली अल्फिया, तीन टर्म्स जब होता है एक एक्सप्रेशन में क्या कहते हैं, trinomial. Great, awesome. So we came across these three terms. Tomorrow we will learn more about this trinomial, binomial, क्या करते हैं इसके साथ, and these terms. ठीक है। So thank you so much. I will send this recording. Okay, sir. में अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा, you can reach out to me. There is no homework as such for today, but I would say कि आप फिर से ये recording एक और बार देखना, क्योंकि that will actually help you to regain your memory back or boost your memory for tomorrow's class. Sir, send the PDF.